So now, Manini, could you introduce Professor Arvind Mohan, Yes, please? ma'am. As we all know, Sir is Dean Academic, and he is also the professor and head in the Department of Economics. And Sir is also a consultant at World Bank, UNDP, UNICEF, and he has also been invited by American government as an ambassador. Then convener UP Sustainable Development Report Steering Committee, chairman Committee for Framing Services Rules, member Committee for Drafting Amendment. Then Sir has done assignments as an expert for UPSC, and then he has been an adjunct professor at IIM Lucknow. He is an expert for NAC, and as regards to his administrative experience, Sir has been the Director Institute of Management Sciences for 3.8 years. That he has been Director Institute of Development Studies, and then also Director Population Research Center, Director Planning and Development. In addition to this, Sir has 120 publications and many with World Bank, ILO, and UNDP. And Sir has been a university topper and all-time record breaker. He had also got the Chancellor's Medal. And Sir is a regular columnist for Times of India and Hindustan Times, as well as an expert for CNBC, CNN, Z News, Aaj Tak, News 24, and so on. Thank you so much, sir, for being here. And we would just ask you to please enlighten our students with your words. Thank you, Manini. It's truly a pleasure and privilege to be with all of you here today. And I would like to congratulate Manisha ji and the entire team for organizing this extremely relevant webinar today. Research is a completely different ballgame today. I will recall Prime Minister Manmohan Singh when the century was just beginning. As a Prime Minister, he happened to mention that 21st century will be driven by knowledge. This is the century of knowledge. 21वीं शताब्दी नॉलेज की सेंचुरी होने जा रही है. सबसे बड़ा जो ड्राइवर है इस चेंज का इस पूरी सेंचुरी में is going to be knowledge. And obviously research and development is something which can be truly transforming. It can take us places. Today we are facing this challenge, the great COVID challenge. But even when we are looking at this challenge, it is knowledge, it is research and development which is going to transform everything. And we as researchers have both a duty towards the nation, towards the world, towards this institution, and also towards ourselves to contribute to this very relevant phenomenon of generating knowledge, researching knowledge, and making number of, as Dr. Poonam just mentioned, that when we are doing some research, we are first identifying some problem. Truly speaking, all problems are human problem. हमने सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए तमाम कंपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए. फिजिक्स अलग कर दिया, बायोलॉजिकल साइंसेज अलग कर दिया, इकोनॉमिक साइंसेज अलग कर दिया, लीगल साइंस. रीजन वाज दैट इट वाज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट एंड रिसर्च एवरी पॉसिबल डिसिप्लिन टुगेदर. तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए अलग अलग सेगमेंटेशन कर दिए. In each one of them, we are trying to look at some problem. For example, I'm primarily an economist. मैं दूसरे डिसिप्लिन उतने अच्छे से नहीं समझूंगा. When I'm looking at economics, for example, हम कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स देख रहे हैं. दुनिया के सामने कभी पॉवर्टी का चैलेंज है, कभी अनएम्प्लॉयमेंट का चैलेंज है, कभी इन्वेस्टमेंट का चैलेंज है, कभी कोविड आ जाता है तो एकाएक हमें लगता है कि शायद सारी दुनिया एकाएक हमारी ग्रोथ नीचे चली जाएगी, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, एवरीथिंग विल बी नेगेटिव. So we are looking at some typical type of problems. And as economists, researcher in this particular field, we have to understand first what is the problem. हमें problem identify करनी और फिर उसके solutions निकालने. दुनिया के लिए, human race के लिए हमें समाधान ढूंढने. That is all what research is all about. मुझे लगता है कि जो broad features हैं research करने के, वो सब common है. उसमें कोई विशेष फर्क नहीं है. Every science that we are looking at, whether it is the science, the physical sciences, biological sciences, or economic science, or many other fields, हम सब में सबसे पहले यूनिवर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. हमारी रिसर्च का यूनिवर्स क्या होने जा रहा है.
रिसर्च में जब हम यूनिवर्स डिफाइन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि हम क्या चीजें इंक्लूड करने जा रहे हैं और क्या चीजें हम छोड़ देंगे. What are those critical things which are going to include and what we are going to leave out? Leaving out or defining the boundary is very important. क्योंकि अगर हम सारी चीजें लाने की कोशिश करेंगे तो चैलेंज ये आएगा कि शायद हम रिसर्च को किसी रेलिवेंट कंक्लूजन तक नहीं ले जा पाएंगे. Many of you, I understand, will must be PhD scholars या आप में से कुछ भविष्य में PhD करना चाह रहे होंगे. सही मायनों में PhD is the beginning of research. PhD end goal मुझे नहीं लगता कि हो सकता है. शायद हम वहां से रिसर्च की शुरुआत करते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ रिसर्च. इंपॉर्टेंट ये शायद इसलिए है कि यहाँ पर आप, क्यों, मेरा जो अपना अनुभव रहा है, रिसर्चर्स हमें पीएचडी खासतौर पे दो तरीके की दिखाई पड़ती है. एक वो जो हमारी, एंड दिस मस्ट बी स्टोरी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, हमारी टैगोर लाइब्रेरी में हमने एक रूम बना दिया. ज्यादातर पीएचडी थीसिस वहां जाके डंप हो जाती है, हम में से कोई उसे पलट के नहीं देखता है, यहाँ तक कि जो रिसर्च स्कॉलर है वो खुद भी पलट के नहीं देखा है. दूसरी रिसर्च वो है जिसको सारी दुनिया पलट के देख रही है, जिसके अराउंड पॉलिसीज बन रही हैं, बिकॉज दे आर रेलिवेंट रिसर्च. तो मेरा आप सबको ये सुझाव होगा, जब आप रिसर्च की शुरुआत कर रहे हैं, चाहे पीएचडी का वर्क हो या कोई भी दूसरा वर्क, एनी काइंड ऑफ रिसर्च दैट यू आर लुकिंग एट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर प्रॉब्लम, आप किस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं वो रेलिवेंट होना चाहिए. रिसर्च से ज्यादा आज की तारीख में कोई इससे ज्यादा ल्यूक्रेटिव वर्क नहीं हो सकता है. ये ल्यूक्रेटिव इन द सेंस ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न्स, इट कैन टेक यू प्लेसेस, इवन अ गुड पीएचडी कैन टेक यू प्लेसेस. तो आज की तारीख में जो नॉलेज रिसर्चर्स हैं या रिसर्च अच्छी रिसर्च करने वाले बहुत कम है. अगर आप थोड़ी भी अच्छी रिसर्च करेंगे तो आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान होगा, बहुत आसानी से. somebody has started sharing the screen. I think somebody is, please. अगर आप अच्छी रिसर्च करेंगे तो संभावना इस बात की है कि वो आप दैट इटसेल्फ कैन टेक यू प्लेसेस. अच्छी और साधारण रिसर्च में डिस्टिंक्शन आज की तारीख में बहुत आसान है, क्योंकि अच्छे रिसर्च में बहुत कम है, हर चीज में बहुत गैप है. मेरा आप सबको ये सुझाव होगा कि रिसर्च, मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूं. मोनिशा जी कैन शेयर दिस. Sir, you just go below and you can share your screen. Okay, I'll just below you can see. We were doing a study around 2007 odd. This was a global team. There were experts from number of agencies, particularly World Bank, IMF इत्यादि के experts थे. We were tracking 200 countries from across the world. उनकी growth story को capture करने की कोशिश कर रहे थे. And we realized that towards the end of the last century, suddenly अमेरिकन इकोनॉमी में, यूरोपियन इकोनॉमी है जिसको आप डेवलप वर्ल्ड कह सकते हैं, डेवलप वर्ल्ड में सडनली एक मेल्टडाउन जैसी स्थिति में, या जिसको हम रिसेशन कहते हैं, रिसेशन जैसी स्थिति दिखाई देने लगी. दिस इज ऑल्सो द पीरियड व्हेन लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दुनिया के जो सबसे बड़े बैंक हैं 20 अगर हम देखें, तो दे वर आइदर अमेरिकन और यूरोपियन और जापानीज. दे वर ऑल फ्लश विद फंड्स. दे वर ट्राइंग टू लोकेट और आइडेंटिफाई लोकेशंस जहां पर वो इन्वेस्टमेंट ले जा सकते हैं. बट बिकॉज ऑफ रिसेशन दुनिया के तमाम हिस्सों में, बड़े देशों में, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज में, वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फॉर ऑल दीज मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस है वो यूरोप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अमेरिका में करना चाहते हैं, जापान में करना चाहते हैं. डेवलपिंग कंट्रीज में वो लास्ट ऑप्शन है. So they were not wanting to invest in developing or emerging economies. So at that point of time, क्योंकि वो अपने देशों में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, सब प्राइम लेंडिंग की शुरुआत हो गई. सब प्राइम लेंडिंग से मतलब है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर, हाउसिंग है या कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसका हम जब मैप करने की हम कोशिश कर रहे थे, तो वी रियलाइज दैट हाउसिंग और प्रॉपर्टी रेट्स वर राइजिंग फॉर ऑलमोस्ट 60 years. अगर हम उसकी ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो लगातार बढ़ते जा रहे थे, और एंटायर पीरियड ऑफ 90s लगातार एक सिग्निफिकेंट राइज दिखा रहे थे. मीनिंग मेनी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस स्टार्टेड प्लेइंग अराउंड इट. उन्होंने प्राइम लेंडिंग हम कहते हैं, जो एडिक्वेट लेंडिंग बैंक्स करते हैं, सब प्राइम लेंडिंग है कि जो इनएप्रोप्रिएट बोरोवर है उसको भी हम लोन देना शुरू कर देते हैं. अमेरिका में और यूरोप के ज्यादातर देशों में सब प्राइम लेंडिंग की शुरुआत हो गई. सब प्राइम लेंडिंग एक रिस्की बिजनेस था,
और उस रिस्की बिजनेस को मिनिमाइज करने के लिए बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ने तरह तरह के फाइनेंशियल इनोवेशंस यूज किए. वन ऑफ द मेजर फाइनेंशियल इनोवेशन व्हिच वाज यूज्ड वाज स्पेशल पर्पसेस व्हीकल, जिससे वो अपनी रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे थे. ब्रॉडली स्पीकिंग, इनअप्रोप्रिएट लेंडिंग की शुरुआत हो गई. इस लेंडिंग का जो स्केल था 2002 में करीब $20 बिलियन की लेंडिंग हुई. 2006 में $600 बिलियन की लेंडिंग हुई. 2007 के लास्ट क्वार्टर ऑफ 2007, just 3 months, lending was $7 trillion. I'm no longer talking billion, it is now trillion. 3 महीने में $7 ट्रिलियन की लेंडिंग हुई. और जब हम 2008 के मिड में पहुंच रहे हैं तो 2000 के मिड में आते आते ये लेंडिंग, एग्रीगेटेड लेंडिंग $70 ट्रिलियन हो गई. हिंदुस्तान की इकोनॉमी आज लगभग $3 ट्रिलियन के बराबर है. उस समय हमारी पूरी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी का साइज $0.4 ट्रिलियन था और सारी दुनिया में ये इनअप्रोप्रिएट लेंडिंग का साइज $70 ट्रिलियन हो गया. अराउंड दिस व्हेन वी स्टार्टेड डेवलपिंग चार्ट्स कि आगे दुनिया में क्या होने वाला है, वी वर एबल टू प्रोजेक्ट एंड प्रिडिक्ट कि 2008 में समटाइम सारी दुनिया क्रिटिकल रिसेशन में चली जाएगी. और जब उसको फर्दर एनालाइज करने लगे तो वी रियलाइज यूजिंग 100 ईयर लॉन्ग डेटा, 100 साल का हमने डेटा उठा करके देखा, एंड वी रियलाइज कि जब भी हाउसिंग बर्स्ट या रियल एस्टेट की वजह से जब इस तरीके के मेल्टडाउन आते हैं, रिसेशन आते हैं, तो ये आसानी से जाते नहीं. ये अक्सर एक डब्ल्यू क्रिएट करते हैं, कम एटलीस्ट 1 डब्ल्यू, मीनिंग इकोनॉमी नीचे जा रही है, जीडीपी इत्यादि, एम्प्लॉयमेंट इत्यादि नीचे जा रहा है, फिर ये उठता है, फिर नीचे जाता है, फिर उठता है. अक्सर ये मोर देन 1 डब्ल्यू क्रिएट कर देता है. So we were projecting at that point of time in 2007 that by 2009 or so world will be in recession, and because of this housing kind of a link, ये recession जल्दी से जाने वाला नहीं है. And then we started working on a paper subsequently. हम फिर ये समझने की कोशिश करने लगे कि for example being an Indian, I had more interest in India. अब हम ये रिसर्च करने लगे कि इंडिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा. तो now what I am looking at is, I'm looking at, मेरे हिसाब से रिसर्च का जो सबसे सिग्निफिकेंट सेगमेंट है वो हाइपोथेसिस है. हाइपोथेसिस में हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जहां ये क्राइसिस आई, प्राइमरीली अमेरिका, यूरोप में, ये क्राइसिस का जेनेसिस क्या है. उसके लिए हमने कुछ हाइपोथेसिस बिल्ड किए, उसको इवैल्यूएट किया, एंड वी वर एबल टू अंडरस्टैंड कि ग्लोबल पैरामीटर्स पर सारी दुनिया ग्रेजुअली, हमने 7 इंडिकेटर्स यूज किए, उसको बाद में कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज ने अपना मेन फ्रेम फॉर एनालाइजिंग ग्लोबल रिस्क वो बना दिया. उसके आधार पर हमने जब मेजर करना शुरू किया तो हमने रियलाइज किया कि 2008 पहुंचते पहुंचते 7 में से 6 क्रिटिकल इंडिकेटर्स ऑलरेडी नेगेटिव हो चुके थे सारी दुनिया में. एक इंडिकेटर जो नेगेटिव नहीं था वो था परफॉर्मेंस ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया, चाइना एक्सेट्रा. बाकी सब नेगेटिव हो गए थे. अक्टूबर 2008 आते आते वो भी नेगेटिव हो गया. फिर हमने ये समझने की कोशिश की कि इंडिया जैसे कंट्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा. एंड व्हाट वी डिड वाज, हमने अब दूसरा सेट ऑफ हाइपोथेसिस डेवलप किया कि इंडिया में ये क्राइसिस नहीं, क्राइसिस हो रही कहीं वेस्ट में. इंडिया के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स क्या है. तो हमने फंडामेंटल्स कुछ मेजर किए, उनको समझा कि ये फंडामेंटल, एंड वी रियलाइज दैट मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल्स इन इंडियन इकोनॉमी दे आर ऑल इंप्रूविंग, ये बढ़ते जा रहे थे. तो एक तरफ ग्लोबल वीकनेस है और एक तरफ डोमेस्टिक स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही थी. तब हमने ये रियलाइज किया कि इंडिया पर असर कम पड़ेगा, देर में पड़ेगा, कम पड़ेगा. बट ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया ने सिग्निफिकेंट ब्लंडर किया मॉनेटरी सेगमेंट में. हमने जिस तरीके से अपनी मनी सप्लाई को हैंडल किया उसकी वजह से हमें ये इसका असर रिलेटिवली जल्दी आ गया, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर असर नहीं आया. व्हाई आई एम कोटिंग दिस सिग्निफिकेंट वर्क दैट वी डिड अराउंड 2008. 2007 तक हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था. 2008 तक शायद ही दुनिया का कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर रहा होगा जिसके पास हमारी रिपोर्ट नहीं थी. वी आर नॉट रेफरिंग टू दैट वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सडनली बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि सारी दुनिया क्राइसिस में जा चुकी थी. ए सिमिलर सिचुएशन इज डेवलपिंग राइट नाउ. इस समय कुछ वैसी सिचुएशन है, शायद उससे भी ज्यादा बड़ा चैलेंज होने जा रहा है. अगर आप प्रॉब्लम को सही तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, उसके अराउंड अपनी रिसर्च बिल्ड करना शुरू करेंगे, तो आपको 2 बड़े एडवांटेजेस हैं. पहला, आपकी रिसर्च इमीडिएटली रिलेवेंट हो जाती है.
जैसे ही आपका वर्क होगा, अगर आपने सिंसियरली और सीरियसली उस वर्क को किया है, तो संभावना है कोई ना कोई एजेंसी, कोई उसका यूजर होगा। और अगर उसका यूजर होने का पोटेंशियल है, तो फाइनेंसिंग ऑफ योर रिसर्च इज द लीस्ट बॉदरिंग थिंग फॉर यू। आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली है फाइनेंसिंग की। क्रेडिबिलिटी अगर आपकी ये एस्टैब्लिश हो गई कि आपका रिसर्च वर्क रिलेवेंट है, आप रिलेवेंट रिसर्च कर रहे हैं, और आपकी रिसर्च मीनिंगफुल होगी बिकॉज इट मे हैव द पोटेंशियल ऑफ फाइंडिंग सम प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन, सम सॉल्यूशंस फॉर ह्यूमन प्रॉब्लम्स। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई योर यूनिवर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट है अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइन करिए, आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और फिर ऑब्जेक्टिव के अराउंड अपने हाइपोथेसिस आइडेंटिफाई कीजिए। हर छोटी छोटी प्रॉब्लम जो आपने निकाली है उसको हाइपोथेसिस में कन्वर्ट कीजिए। रिसर्च फॉर मी इज ऑल अबाउट टेस्टिंग दोज हाइपोथेसिस। उस हाइपोथेसिस जो भी आपने बनाई है अपनी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाइए। जब आप अपना मेन रिसर्च शुरू करते हैं तो सम ऑफ द हाइपोथेसिस विल बी टेस्टेड, वो सही पाई जाएंगी, कुछ बस्ट हो जाएंगी, गलत साबित होंगी, डजंट मैटर। आपकी हाइपोथेसिस सही साबित होती है, गलत होती है, उसको जबरदस्ती प्रूव करने की कोशिश मत कीजिए। जो भी एविडेंस कह रही है उसके हिसाब से अपने फाइनल कंक्लूजन्स लाइए। बाकी डिफरेंट डिसिप्लिन के मेथोलॉजी ऑब्वियसली डिफरेंट होने जा रही है। आप कौन से टूल्स यूज करेंगे, आप सेकेंडरी डेटा यूज करेंगे, प्राइमरी डेटा यूज करेंगे। आप for example in our kind of science we use methods like say interview methods हम use करते हैं, variety of other methods use करते हैं। then we what kind of statistical packages you can use। आज की तारीख में बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिकल पैकेजेस अवेलेबल हैं, ranging from Stata to SPSS to R, variety of available। Similarly in other disciplines also variety of research tools are available। बी ऑनेस्ट विद योर रिसर्च, अपनी रिसर्च के साथ ऑनेस्ट रहिए। अच्छी रिसर्च आपको दुनिया भर के किसी भी कोने में ले जाएगी। मेरा अपना अनुभव है कि एट अ मच यंगर एज, वे बैक, आई वॉज सिटिंग ऑन कमिटीज जहां सीनियर सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट वर सपोर्टिंग ऑफिसर्स। मेरा अनुभव है कि ग्लोबल लेवल पर आई विजिटेड यूएस ऑन द इनवाइट ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट, एवरीवेयर बीइंग रिसीव्ड बाय मेयर्स और हिज रिप्रेजेंटेटिव ऑन द एयरपोर्ट। ये सिर्फ एक रिसर्चर को ही इज्जत मिल सकती या एक एकेडमिक को मिल सकती। तो मुझे लगता है कि इफ यू आर एबल टू टेक योर रिसर्च टू दैट लेवल, इसमें समय लगता है, लेकिन बी ऑनेस्ट, अपनी रिसर्च की मेथोलॉजी पे फोकस करिए। रिसर्च का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आपकी मेथोलॉजी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर प्रॉब्लम एंड देन यूजिंग द राइट मेथोलॉजी। रेलेवेंट कीजिए, यूजलेस। सी फॉर अस मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट दैट वी कैन मेक इज आवर टाइम। हमारे पास लिमिटेड टाइम है, 70 80 90 साल जो भी हमें से हमारे पास समय है, इससे ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अपनी रिसर्च में साल भर, 6 महीना, 2 साल, 3 साल लगाने जा रहे हैं, तो शायद अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण निवेश कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट दैट यू आर मेकिंग इज दिस। इसको बिल्कुल सीरियसली लीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट आपके पास कुछ नहीं, टाइम। तो जो भी टाइम यूज कर रहे हैं उसको वेस्ट मत होने दीजिए। और अगर आपने अच्छी रिसर्च की तो ये आपको कहाँ ले जा सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपकी पोजिशनिंग, आपकी फाइनेंशियल पोजिशन, आपका सोशल स्टेटस, ये सब चीज रिडिफाइन कर सकता है। सो रिसर्च टुडे इज द मोस्ट ल्यूक्रेटिव वर्क विच इज हैपनिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और क्योंकि 21वीं शताब्दी नॉलेज की एज है, ये पूरी तरीके से चेंज करेगा। अभी जैसा प्रोफेसर पूनम टंडन ने भी बताया कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में वी हैव बीन एबल टू मेक सिग्निफिकेंट चेंजेस इन आवर गवर्नेंस स्ट्रक्चर। हमने जो रूटीन सेट था यूनिवर्सिटी को गवर्न करने का, उसमें कुछ चेंजेस किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस आर वी क्रिएटेड न्यू पोजीशंस ऑफ डीन्स। फॉर एग्जांपल प्रोफेसर मोनिशा बनर्जी इज currently heading our research division. I'm heading the academic division. One of our other colleagues is heading recruitment, etc. Professor Poonam is heading student welfare. अब हम जो मेजर फोकस हम लाने की कोशिश कर रहे हैं वो एकेडमिक्स और रिसर्च पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम यूनिवर्सिटी में जरूर वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहेंगे जिससे हम रिसर्च को आगे बढ़ा सके। सी एकेडमिक्स एंड रिसर्च इज ऑल इंटररिलेटेड, इंटीग्रेटेड है। तो चाहे टीचिंग हो, चाहे डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज हो, या जनरेशन ऑफ नॉलेज हो,
हम इस पर विशेष रूप से फोकस करना चाह रहे हैं। वी इंटेंड क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम, हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जहां रिसर्चर्स के लिए एक फ्री स्पेस हो। फ्री माइंड कैन ओनली क्रिएट नॉलेज, और हम वैसे ही स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं। वी विल love to have suggestions from you also, from everybody, right from students to faculty from across the country and maybe abroad also. We'll want your suggestions कि हम कैसे इस ecosystem को और healthy बना सकते हैं, so that this institution is able to contribute even better than what it is doing today to academics and research. And we will also want to create a system जहां हमारे students रिसर्चर के रूप में आगे बढ़ सके, हमारी फैकल्टी को उस तरीके की इंडिपेंडेंस हो और उस तरीके का फ्रीडम हो कि हम एडिशन ऑफ नॉलेज में कंट्रीब्यूट कर सकें। थैंक यू सो मच मोनिशा जी एंड योर टीम फॉर हैविंग मी फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिलिबरेशन। थैंक यू सो मच।